Jai Shri Krishna. So in our last lecture we discussed about the amino acid, and amino acid is the fundamental molecule of biomolecule protein. Ready? So first of all, let's we revise the topic amino acid. What is amino acid? Actually, amino acid is one type of molecule in which two different functional groups are present. First one, amino functional group, and second one, acid functional group, right? Acid means carboxylic acid. So due to both of that molecule, it is known as amino acid. Ready? So now, what is amino acid? So you can see here, amino acid contain amino and carboxylic acid functional group. Clear? Depending upon the relative position of amino group with respect to carboxyl group, amino acid can be classified as alpha, beta, gamma, delta, so on, means delta, etc, etc. Alpha amino acid are obtained by the hydrolysis of protein. Why it is called alpha amino acid? Actually, mainly all the amino acid most probably formed by the alpha amino acids. So when we hydrolyze the protein molecules, actually it is a macromolecule, protein is, but when we hydrolyze that macromolecule of protein, it is converting into monomer like amino acid, but that amino acid is alpha amino acid. Why it is called alpha amino acid? Because you can see here, the carbon which is connected with COOH, you can see here, this is the carbon which is connected with COOH main functional group. So the carbon which is connected with main functional group COOH, then it is known as alpha, and adjacent carbon of alpha is known as beta carbon. But here you can see the NH2 functional group. You see here, you can see NH2 functional group which is connected with alpha carbon, so it is known as alpha amino acid. So you can see in amino acid, NH2 amino functional group present in on alpha carbon, so it is known as alpha amino acid, right? All alpha amino acid have trivial name. पहले आपको मैंने बोला था सभी अल्फा एमिनो एसिड्स का ट्रिवियल नेम होता है. क्यों? जो कहां से वो मिला है, उसका सोर्स कौन सा है, उसका टेस्ट कौन सा है. ऑन द बेस ऑफ दैट फैक्टर वी कैन गिव द नेम ऑफ एमिनो एसिड्स, लाइक यू कैन सी व्हिच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड और सोर्स, राइट? हमको पहले ही बोला प्रॉपर्टी जो टेस्ट है उसकी प्रॉपर्टी है, एंड सोर्स कहां से वो मिल पाता है उसके बेस पे उसे नाम, उसका नाम दिया जाता है. इट इज नोन एज ट्रिवियल नेम. सो यू कैन सी द ग्लाइसिन वर्ड, ग्लाइसिन, one second, we can change the color of ink. सॉरी, कुछ आज नया करने जा रहे हैं इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी. चलिए ठीक है. चलो आप देखिए, आप यहाँ पे ग्लाइसिन, इट इज अ ग्लाइसिन. मैंने आपको पहले ही बोला था एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है. तो एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है RCH, COOH and NH2. Ready? This is the chiral carbon if R is differ from this hydrogen or COOH or NH2. This is the R. R is not only alkyl but it is aromatic, aliphatic and heteroatomic functional. It means alkyl या तो aryl functional group और सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या तो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो, वैसा कोई फंक्शनल ग्रुप है आर के जगह पे. आप आर के बजाय आप एच भी ले सकते हो. इफ वी यूज एच इन प्लेस ऑफ आर, देन वी गेट the amino acid, and that is HCH, COOH, and here NH2. So you can see, if we apply hydrogen in place of alkyl function, means R, then this amino acid is known as glycine, and this glycine amino acid is not optically active because there is no any chiral carbons are present in this glycine. What is chiral carbon? The carbon
which have different four functional groups, or the carbon which is connected with different four functional groups or atom. It means satisfy four valency of carbon by different functional groups or element, then that specific carbon is known as optically active or chiral carbon. Ready? So you can see this glycine is not optically active because this carbon has two similar atoms are connected hydrogen, so it is not optically active, it means not chiral. And if any species have at least one chiral carbon, then it is act as optically active and which can rotate plant polarized light either in right side or in left side. Ready? We already discussed that specific topic, right? हमने इसके अगले लेक्चर में इसके बारे में बात भी की थी, डेक्स्ट्रो लिगो रोटेटर के बारे में, ठीक है? So glycine is so named since it has a sweet taste. You can say it's sweet taste. And Greek word sweet taste, glycose means sweet. Ready? Means sweet. And tyrosine is one type of amino acid. The tyrosine word coming from tyros, and tyros means cheese. We can obtain or extract the tyrosine amino acid from the cheese, so it is known as tyrosine amino acid. You can say tyrosine was first obtained from the cheese, and in Greek word tyros means cheese, right? Now amino acid are generally represented by three letter, like I have glycine, then we can represent by GLY, glycine. Suppose I have alanine. What is alanine? Actually, in place of R, if we use CH3, in place of R, if we use CH3, then CH3, CH, NH2, CAA, it is also one type of amino acid. And this is optically active because here carbon has different four functional groups. And four valencies of carbon, it is satisfied by different functional groups like COOH, H, NH2 and CH3. So if we apply CH3 functional group on the chiral carbon in place of R, then this type of specific amino acid is known as alanine, and we can write this alanine by ALA, 3 alphabet. Suppose we use phenylalanine. Phenylalanine means if we can apply C6H5CH2 in place of R and CH, and NH2. So you can see, my dear, in place of R we use here C6H5CH2. हमने यहाँ पे बदल दिया R के जगह पे, यहाँ पे सिर्फ CH3 लिया था, यहाँ पे हमने CH2C6H5 ले लिया. So it is known as phenylalanine. So we can write here PAL, phenylalanine. So you can see here amino acid generally represented by three letter symbol. Ready? Sometimes one letter symbol is also used, like for G for glycine, A for alanine. Structure of some commonly occurring amino acid having their three letter and one letter symbol. मतलब आप किसी भी एमिनो एसिड को या तो आप थ्री लेटर या तो एक लेटर के सिंबल से दिखा सकते हो. इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था बच्चों. मैंने इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स भी ऐड किए थे. क्या बोला था मैंने लास्ट लेक्चर में, वो आपको बताता हूँ. मैंने आपको बोला था कि जो कोई भी एमिनो एसिड है जो नेचुरली हम which can obtain from the hydrolysis of protein. By the hydrolysis of protein we can produce the amino acid by the hydrolysis of protein. Suppose, ready? तो वो जो आपको प्रोटीन में से अल्फा जो एमिनो एसिड मिलने वाला है वो ऑलमोस्ट एल एमिनो एसिड होगा. मैंने आपको पहले ही बोला था, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इफ आई हैव I have chiral carbon where here H, NH2, COOH, and one functional group is R. Here R. This is the chiral carbon support. If we use exceptionally, if we use hydrogen in place of this R, then it becomes glycine, and it is not a chiral carbon, right? Remember that important thing. But in place of R, if we use different types of functional group, it is not necessary we have to use alkyl or allyl, but anyone, you can use any one functional group, then we can obtain different types of amino acid. But if you use only hydrogen, then it becomes glycine, it is optically inactive, and other than hydrogen in place of R, then it becomes optically active. ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको जो NH2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, अगर वो राइट साइड में प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा हमारा डेक्स्ट्रो
कैपिटल डी, नॉट स्मॉल डी। मैंने आपको पहले बोला कैपिटल डी इज वन टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमिनो एसिड, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड। प्रॉपर्टी मीन्स द ऑप्टिकल एक्टिविटी, the substance which can rotate plant polarized light either in left or right side, but that is the specific property of compound. It is not a geometry, it is not a configuration. Configuration means the spatial arrangement of connected functional group with carbon of amino acid. So you can see here, if NH2 functional group configuration, in this configuration, if NH2 functional group is present on right side to the chiral carbon, then we can use here capital D. And if NH2 functional group is present in left side, on left side of chiral carbon, ready, you can see here NH2 functional group is present in left side, then we can use that L amino acid. Naturally, almost naturally obtained amino acids are L amino acid. बच्चों, आप प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके जितने भी एमिनो एसिड आप गेन करते हो, आपको जितने भी एमिनो एसिड मिलते हैं वो सभी के सभी ऑलमोस्ट एल एमिनो एसिड ही होंगे। बच्चों, टोटली 20 टाइप्स के अमीनो एसिड पॉसिबल है नेचुरली। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर पॉसिबल फ्रॉम नेचर। We can classify specially into two parts on the basis of the source: essential amino acids and non-essential amino acids. And on the basis of acidity and basicity, we can classify into three parts: acidic amino acid, basic amino acid and neutral amino acid. In our NCERT textbook आपको एसिडिटी और बेसिसिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया, मगर हमें वो याद रखना होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट में हम वो देखते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको टोटल 20 डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड दिए गए हो, जिसमें से आपको यहाँ पे अभी हमने बात की कि कोई भी एमिनो एसिड को आप 3 अल्फाबेट को यूज करके सिंबलाइज कर सकते हो, या तो सिंगल अल्फाबेट से कोड भी दे सकते हो। लाइक यहाँ पे देखिए आप ग्लाइसिन। ग्लाइसिन actually this is the general formula of amino acid, like here hydrogen, carbon, NH2 suppose, here COOH, and here R. In place of R we can use here either hydrogen or methyl or isopropyl or isobutyl functioning group, anyone। आप जैसे जैसे ये R बदलते जाओगे वैसे वैसे आपको अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड मिलने वाले हैं। टोटल 20 टाइप्स के डिफरेंट एमिनो एसिड है बच्चों, याद रखना। सो यू कैन सी हियर, if we use here hydrogen, then it will become glycine। on the basis of glycine, first 3 alphabets are used for the symbol of glycine, और कोड आपको देना है तो आप कैपिटल G भी दे सकते हो। ठीक है, बाद में आप देखिए एलेनिन, अगर आप आर के बजाय मिथाइल यूज करते हो यहाँ पे मिथाइल, तो आपको मिल जाएगा एलेनिन। वैसे वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, सेरिन, सिस्टीन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन, लाइसिन, फिनाइलेलेनिन, टायरोसिन, प्रोलिन, हिस्टीडीन एंड ट्रिप्टोफैन। आपको एक एक्सेप्शन याद रखना होगा बच्चों, मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ, आपको जहन में भी रखना होगा। देखिए, मैं आपको एक्सेप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में जो बात नहीं की मैं वहां पे यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे एमिनो एसिड में आप एक एमिनो एसिड ढूंढो जिसे प्रोलिन बोला जा सकता है। प्रोलिन, यहाँ पे देखिए आपको प्रोलिन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये है प्रोलिन। ठीक है, लास्ट में 20 वाला, सो 20 नंबर वाला जो एमिनो एसिड है उसका नाम क्या है? प्रोलिन। बच्चों, ये प्रोलिन में आपको एक्सेप्शन क्या देखने को मिलेगा? ये जो एमिनो एसिड है, ये एक्चुअली पूरा का पूरा एमिनो एसिड है। दिस इज द टोटल एमिनो एसिड, नॉट आर। ये आर नहीं है, ये पूरा एमिनो एसिड ही है। ठीक है, ये प्रोलिन में सेकेंडरी एमिनो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। बच्चों, ये बात आपको याद रखना होगा। इन एक्सेप्शन क्या हुआ? हमारा प्रोलिन, क्योंकि प्रोलिन एक ही है जो सेकेंडरी एमिनो एसिड है, जबकि अनदर एमिनो एसिड्स आर प्राइमरी, हैव प्राइमरी एमाइन। अनदर एमिनो एसिड्स हैव प्राइमरी एमाइन। तो आप सोचोगे सर कहां आप प्राइमरी एमाइन को ढूंढने? ये देखिए, यहाँ पे भी आपको सेकेंडरी एमाइन मिल जाएगा, हिस्टीडीन में भी आपको सेकेंडरी एमाइन मिल जाएगा। मगर बच्चों याद रखो, ये जो
ट्रिप्टोफेन में आप देख रहे हो ये पार्ट, ये वाला पार्ट जो सेकेंडरी एमिन वाला देख रहे हो, वो सभी के सभी ओनली आर है, आर। और ये आर को आप ऐसे लिखना होगा आपको, जैसे कि एच सी सॉरी एच सी सी डबल ओ एच, हियर NH2 एंड आर। यहाँ पे आर की जगह पे आप ये दोनों को आपको ऐड करना होगा आर के जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे NH2 तो प्राइमरी ही होगा ना बच्चों, इट इज अ प्राइमरी एमाइन, इट इज नॉट सेकेंडरी एमाइन, बट एक्सेप्शनली in proline it is not a R, it is a total amino acid. So you can see this structure, in this structure you can see this amino functional group is present in this amino acid. Amino functional group is secondary amino acid is present, so this proline is known as secondary amino, proline as a secondary amino functional group. And exceptionally that cyclic structure total act as a एमिनो एसिड, इट इज नॉट आर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको जो यहाँ पे ये चेन इनिशियली आपको ये चार्ट में भी दे दिया, देखिए ऑफ द साइड चेन आर। तो यहाँ पे जो आर मिली, ये जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं ये सभी के सभी बच्चों आर ही है, ऑल ऑफ दीज आर आर, नॉट टोटल एमिनो एसिड, बट इन जस्ट प्रोलिन it is not R, it is a amino acid, right? So remember that proline is a secondary amino acid, then another amino acids are primary, another amino acid have primary amine functioning group, ठीक है। चलो अब आगे एक बात बताता हूँ आपको। On the basis of क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन में मेनली आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपको दो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, एक है हमारा एमिनो फंक्शनल ग्रुप और दूसरा है हमारे पास एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो बात ये है कि हमें ये एसिडिक किया होगा या बेसिक होगा, कैसे पता चलेगा? मतलब जो हमारे पास एमिनो एसिड है वो एमिनो एसिड एसिडिक है या बेसिक, कैसे पता चलेगा बच्चों? 20 एमिनो एसिड है जिसमें से आपको सिर्फ के सिर्फ, देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ, 20 एमिनो एसिड है जिसमें से आपको सिर्फ 5 एमिनो एसिड याद रखने होंगे ठीक से, वो भी ठीक है। बाकी के 15 आप निकाल देना। कैसे याद रखना है, क्यों याद रखना है, मैं बताता हूँ बच्चों। ये एमिनो एसिड देखिए, इसमें आपको NH2 ग्रुप भी मिल रहा है, COOH मिल रहा है। वी हैव NH2 and COOH both functional groups in amino acid. Amino functional group act as a basic group and COOH functional group act as a acidic group. So the property of amino acid, either acidic or basic or neutral, which is totally based on the property of functional group R, not on the basis of NH2 and COOH, because both of that acidic and basic functional groups are neutralized to each other. ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे। बचा कौन सा वाला? आर। अगर ये आर है आपके पास, जो ये एमिनो एसिड में आर है, अगर ये आर न्यूट्रल हो गया तो एमिनो एसिड हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। अगर ये आर बेसिक हो गया तो हमारा एसिडिक जो एमिनो एसिड है वो बेसिक हो जाएगा। अगर ये आर एसिडिक है तो हमारा एमिनो एसिड है वो एसिडिक होगा, ठीक है। Because this COOH and NH2 both are acidic and basic, totally opposite functional groups, and they are totally neutralized to each other. So resulting acidic property is totally based on R. So if R is neutral, then amino acid is neutral. If R is acidic, then amino acidic, and if R is basic, then amino acid is basic. Ready? So there are three types of amino acid. First one, acidic amino acid. Second one, basic amino acid, and third one, neutral amino acid. ठीक है। तो अभी आपको याद 20 एमिनो एसिड है हमारे पास नेचुरली, तो आपको एक नाम याद दे रहा हूं, एक ग्लू। आपको एक नाम याद रखना होगा, एक ग्लू। ग्लू मीन्स ग्लू, जो ग्लू स्टिक आती है वो, आपको ग्लू को बुलाना है। ए ग्लू, इधर आ जा, ए ग्लू। वेयर ए मीन्स एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। नाम एमिनो एसिड के नाम में ही एसिडिक नेचर दे दिया है। एंड ग्लू
glue, not GLY, gly, not gly, it is glue. Glue means glutamic acid. Both of these amino acids are acidic in nature. So you can see first of all glutamic acid and number 8 and number 9 you can see glutamic acid and aspartic acid. Both of these are basic acidic in nature. Now next point is अगर आपको देखना है कि चलिए अभी हमारे पास अभी एसिडिक नेचर वाला या तो बेसिक नेचर वाला कौन है वो देखते हैं। चलिए बेसिक आपको मिलेगा और वो होगा हमारा जो बेसिक है वो है हमारा आहिला, आहिला, एग्लू, आहिला, एग्लू, आहिला, एग्लू एसिड के लिए, आहिला बेसिक के लिए। सुनिए वापस मैं आपको दे रहा हूं आहिला, कलर चेंज करते ये थोड़ा डल हो रहा है तो इनका कलर बदल देते चलिए, ठीक है। सो आहिला वापस बोल रहा हूं आहिला। देखिए बच्चों आहिला, आपको अगर बेसिक एमिनो एसिड की बात करते तो बेसिक एमिनो एसिड में आ जाएगा आहिला। आ मीन्स आर्जिनिन। अभी देखिए आर्जिनिन नॉट एलेनाइन, इट इज आर्जिनिन। आर्जिनिन, आर्जिनिन ढूंढिए आपको यहाँ पे कहां से मिलेगा, बेसिक है देखिए ये आर्जिनिन आ जाएगा, आर्जिनिन। यहाँ पे NH2 फंक्शनल ग्रुप एक्स्ट्रा है देखिए NH, ये भी NH, यहाँ पे भी NH2 is R, ठीक है। सो इट इज अ बेसिक इन नेचर, ये आर्जिनिन है वो बेसिक हो जाएगा। हिस्टिडीन एंड लाइसिन, सो यू कैन सी हियर इट इज द लाइसिन, arginine and lysine both are basic in nature। and now in last one number 19 आप देखिए यहाँ पे ये वाला हो गया हमारा बेसिक हिस्टिडीन। सो आहिला, ये 5 आपको याद रखने हैं सिर्फ, एक एसिडिक एमिनो एसिड जो 2 है, एक एस्पार्टिक एसिड, एक ग्लूटामिक एसिड, और ये आपको कैसे याद रखना होगा एग्लू, एग्लू। एंड दूसरा वाला होगा बेसिक एमिनो एसिड, उससे बोलते हैं आहिला। ए मींस आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, एग्लू, एस्पार्टिक एसिड, एग्लू। एंड यहाँ पे दूसरा आहिला में एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये 2 ए लिख देता हूँ तो आपको याद रह जाएगा ए एंड आ दोनों को आपको बाइफरगेट करना होगा। सो टू बाइफरगेट ए एंड आ। ए मींस aspartic acid and glutamic acid for acidic amino acid, and for basic amino acid ahila। A means arginine, he means histidine, la means lysine। तो ये पांचों को छोड़ के बाकी जितने बचते हैं other than this 5 amino acids, amongst these 20 amino acids are known as neutral amino acids। सो बच्चों अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वाला न्यूट्रल है तो आपको सिर्फ 5 ही याद रखना है कि वो 5 के सिवा के जितने भी होंगे वो सभी के सभी न्यूट्रल ही होंगे, ठीक है। आपको सिर्फ 5 ही याद रखने हैं, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड दोनों एसिडिक, आहिला, आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन, ये तीनों। तो ये 5 के अलावा अगर कोई भी एमिनो एसिड आपके ऑप्शन में है तो आप कंफर्म कर सकते हो कि वो न्यूट्रल ही होगा, ठीक है। So this is the classification of amino acids on the basis of acidic nature. Ready? So now we classify the another part, another classified state, and that is on the basis of essential and non-essential. It means on the basis of source, essential and non-essential amino acids. So let's discuss the next point. Ready? So you can see here classification of amino acid. Our point is classification of amino acid. So amino acid are classified as a acidic, basic or neutral depending upon the relative number of amino acid and carboxyl group
इन देयर मोलिक्यूल्स ना, पहले ही बता दिया। अगर NH2 फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है, एज आर अल्काइल फंक्शनल ग्रुप बेसिक होगा तो उसमें NH2 ज्यादा होगा, बेसिक फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होगा तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। R एसिडिक है, सपोज एक्स्ट्रा COOH है, तो वो एमिनो एसिड एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। ओके, इक्वल नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स मेक इट न्यूट्रल। जितने एमिनो फंक्शनल ग्रुप है उतने COOH होंगे तो ओवरऑल न्यूट्रल ही हो जाएगा, तो पहले ही बता दिया आपको। More number of amino than carboxyl group make it basic, and more number of carboxyl group as compared to amino groups make it acidic. Simple, ठीक है। अगर NH2 ज्यादा है तो COOH कम हो जाएगा और वो बेसिक हो जाएगा। अगर COOH ज्यादा है NH2 से तो ओवरऑल एमिनो एसिड है वो बेसिक हो जाएगा। COOH ज्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा, सॉरी। Okay, so next one, the amino acid which can be synthesized in our body. There are two classified types. First one is essential amino acid, and second one is non-essential amino acid. ये आपको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना होगा, क्लासिफाई करना होगा। एक होगा हमारे में एसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा हो जाएगा हमारा नॉन एसेंशियल। अभी किसे हम एसेंशियल एमिनो एसिड बोले और किसे हम नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बोले? The amino acids which are formed in our body by nature, then they are known as non-essential. जरूरत नहीं है आपको कहीं से भी लेने की, essential नहीं है, it is non-essential. क्यों? Why? Because it is formed in our body naturally. But some amino acids which are not formed by our body, then we have to use the another sources by food, by diet, proper diet. Ready? So that type of amino acids which are not formed in our body, then they are known as essential amino acid. Essential, जरूरी आपको बाहर से लेना होगा, आपकी बॉडी में नहीं बन रहा, they are known as essential amino acids. Ready? So we can classify into two different parts: essential amino acids and non-essential amino acids. Essential amino acid, it means the amino acids which are not formed in our body, then we have to use another sources. That is known as that type of amino acids are known as essential amino acids. And some amino acids which are formed in our body, so they are known as non-essential. जरूरत नहीं है कहीं से भी लेने की, आपकी बॉडी में ही बन रहा है, ठीक है। So you can see the amino acids which can be synthesized in our body are known as essential amino acids. Ready? Essential amino acids. But on the other hand, other which cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet. मैंने को पहले बोला कि डाइट है वही एक एक्स्ट्रा सोर्स होगा एमिनो एसिड को आपकी बॉडी में लाने के लिए, जो आपकी बॉडी में नहीं बनता, ठीक है। आर नोन एज एसेंशियल एमिनो एसिड्स, बिकॉज आपको वहां से बाहर से ही लेना होगा। अभी कौन एसेंशियल है कौन एसेंशियल नहीं है आपको जानना होगा। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको मैं बताता हूँ। एसेंशियल एमिनो एसिड याद रखना होगा क्योंकि आपको पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। यहाँ पे आपको नहीं देगी मगर आपको लास्ट पीपीटी में आपको मैं वापस दिखाता हूँ। ये जो पीपीटी है इसमें आपको कई एमिनो एसिड ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें आपको स्टार देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको देखिए वेलिन के नाम के ऊपर स्टार है, ल्यूसिन के नाम के ऊपर आपको स्टार मिल रहा है, ऐसा स्टार है। यहाँ पे देखिए ऐसे स्टार है, कोई भी नाम। यहाँ पे देखिए आर्जिनिन, आइसोल्यूशन में स्टार है, आर्जिनिन में स्टार है, लाइसिन में स्टार देखने को मिल रहा है। और नीचे आया थ्रियोनिन में है, मिथियोनिन में है, फिनाइलिन में भी है, ट्रिप्टोफैन में भी है, हिस्टीडिन में भी है। ये जितने स्टार वाले एमिनो एसिड है वो सभी के सभी एसेंशियल है। इट मींस दे आर नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, देन वी हैव टू gain that specific amino acid and to decrease the deficiency of that specific kind of amino acid in our body. We have to use the proper food, we have to eat the proper food and obtain this type of specific amino acid which can be synthesized in our body. They are known as essential amino acid, and we can we can decrease the proper deficiency by using proper diet. Ready? आप डाइट से ही आप ये जितनी भी कमी होगी आपकी बॉडी में वो आप कमी को कम करने के लिए बाहर से एमिनो एसिड लेना होगा, वो भी डाइट की वजह से, ठीक है। डाइट से ही आपको प्रॉपर डाइट से ही आपको मिल सकता है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर ये कैसे याद रखना होगा, तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देता हूँ, वो ट्रिक आप याद रख लो। और देखिए नाम याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, ट्रिक याद रखो, जब एमसीक्यू में आ जाएगा तब से सोल्व हो जाएगा। देखिए आपको ये क्या याद रखना होगा, ट्राई, देखिए ठीक से ट्राई दिस VIP मोल, सिंपल, ट्राई दिस VIP मोल। वापिस बोल रहा हूं एक बार, ध्यान से सुनिएगा, ट्राई दिस VIP मोल। अभी बात बचेगी सर ये ट्राई दिस VIP मोल से कैसे हमें पता चलेगा, अरे बहुत सिंपल है, देखिए ट्राई दिस VIP मोल, चलिए ट्राई, ट्राई का मतलब हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, TH, दिस में हो जाएगा वो TH मतलब हो जाएगा थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। देन आफ्टर हिस मींस हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, V means valine, I means isoleucine, P means phenylalanine, M means methionine। वापिस ट्राई दिस VIP मोल, ट्राई means tryptophan, TH this, from this TH means threonine, his means histidine, V means valine, I means isoleucine, P means phenylalanine, M means methionine, A means arginine, L means leucine, and another L means lysine। Try this VIP मोल, ये नाम, ये कोड आपको याद रखना होगा, ट्राई दिस VIP मोल। ये जो आपको मैंने कोड दिए ये सिर्फ यही नाम के लिए, देखिए जितने भी आप वेलिन, ल्यूसिन, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइलैलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन, ये जो सभी नाम ये आपको ये यहाँ पे मिल गए। देखिए TRY ट्राई इट मींस ट्रिप्टोफैन, दिस में से आपको एक बार TH लेना होगा और एक बार हिस लेना होगा। सो trio tryptophan, then after threonine, then after histidine, valine, leucine, valine, isoleucine, phenylalanine, methionine, asparagine, leucine and isoleucine। बच्चों टोटल आपके पास 20 एमिनो एसिड है, जिसमें से एसेंशियल है 10 एमिनो एसिड और बाकी के जो 10 बचते हैं वो हो जाएंगे हमारे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों मिला के 20 एमिनो एसिड है, जिनमें से 10 एमिनो एसिड है वो हमारे हो जाएंगे एसेंशियल एंड बाकी के 10 जो बचने वाले हैं वो हो जाएंगे नॉन एसेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, एक बात देखिए, एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस। मैंने आपको पहले बोला था एमिनो एसिड कलरलेस होते, मगर सबसे पहले वो वाटर सोल्यूबल भी है, वाटर सोल्यूबल, सॉरी सबसे पहले मैं इंक कलर बदल लेता हूँ, चलिए ठीक है। देखिए एमिनो एसिड आर यूजुअली कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड एंड दिस आर वाटर सोल्यूबल। क्यों वाटर सोल्यूबल क्यों है? क्योंकि एमिनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक COOH है जिसमें पोलर बॉन्ड है, NH2 है वो भी पोलर बॉन्ड वाला है, and water is polar solvent, so all the polar molecules are soluble in polar solvent, so these amino acids are water soluble। Next one, which has high melting solid and behave like salt rather than simple amine और कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब सिंपल एमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह नहीं एक्ट करते, वो स्पेशली एक सॉल्ट की तरह एक्ट करते हैं। दे आर वाटर सोल्यूबल इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। Why they act as a salt? Because you can see there are two different functional groups are present, one COOH and second one NH2, where COOH is acidic in nature, acidic functional group है हमारा, and NH2 functional group is basic in nature,
अभी यार आप सोच लो, एक एसिड और एक बेस दोनों के एक ही घर में आप रखते हो, तो क्या वो ठीक से बैठने वाले हैं? नहीं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर दो इंसान एक दूसरे को पसंद करते हैं और आप वो दोनों को एक साथ में बिठा देते हो एक ही घर में, तो क्या होगा, वो बैठने वाले नहीं है, वो एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पे भी आप देखिए, सी डबल एच फंक्शनल ग्रुप है, NH2 फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल एच है वो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, NH2 है वो बेसिक फंक्शनल ग्रुप है। एंड ऑलवेज द एसिडिक फंक्शनल ग्रुप अट्रैक्टिव टुवर्ड द बेसिक फंक्शनल ग्रुप, सेमली basic functional groups are attractive toward acidic functional group. So first of all, you can see here, in this first of all, in this amino acid, this C double H functional group act as a acidic functional group, where NH2 functional group act as a basic functional group. So ये क्या होगा, बेसिक फंक्शनल ग्रुप होगा, बेस होगा वो H को गेन करेगा, प्रोटॉन गेनर, एंड एसिड होगा वो प्रोटॉन डोनर होगा, प्रोटॉन डोनर होगा। तो क्या होगा, एसिड डबल एच एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये बॉन्ड निकल जाएगा, H को रिलीज कर देगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि वो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि उसके पास बेसिक भी है, और वो क्या करेगा कि भैया और सी डबल एच, तू तो एसिडिक है यार, तू अपना नेचर क्यों लूज कर रहा है, तो अपने H प्लस दे देना। तो सी डबल एच बोलेगा अगर मैं H को छोड़ दूं तो वो बेचारा क्या करेगा अकेला, मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं उसको लूज कर देता हूँ, तो हमारा प्रोटॉन जाएगा किधर बेचारा, तो बोलेगा NH2 बोलेगा डोंट वरी, आई एम बेसिक इन नेचर, आई विल गेन दिस दैट H प्लस। So if C double H functional group lose H plus, then that H plus will gain by NH2. So because it is act as a proton gainer, so this NH2 donate the electron pair, lone pair toward H, and which will convert into RCH C double O minus and NH 3 हो जाएगा, H प्लस आ जाएगा, हो जाएगा प्लस चार्ज। प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे H ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, एंड ऑक्सीजन will become minus and hydrogen will become plus. Ready? So you can see in this structure we have two different poles are present, positive pole and negative pole. So the specific species which are crystalline solid and positive and negative both charges are present on that specific species, then they are known as ZWEETER ion, because actually they are neutral, but positive and negative both ions are present, so they are ZWEETER ions. ZWEETER ions are almost water soluble. So आपको अगर पूछा जाता है कि ZWEETER ion क्या है, तो आपको इसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए चलो, this behavior is due to This behavior is due to the presence of both acidic and basic amino functional group. देखिए एसिडिक मींस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिक मींस NH2 फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये बिहेवियर यही इसीलिए होगा क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप्स में प्रेजेंट है और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इन द सेम मॉलिक्यूल। सो इन एक्वियस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कैन लूज वन प्रोटॉन, राइट, एंड एमिनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट वन प्रोटॉन एंड गिविंग rise to dipolar ion known as ZWEETER ion. Dipolar ion हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हो गया कार्बोक्सिलेट है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है, यहाँ पे हो गया NH3 प्लस, तो डाइपोल जनरेट हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास माइनस चार्ज है, क्या हुआ डाइपोल। रेडी, मैंने आपको पहले बताया दो पोल हो जाएंगे यहाँ पे। So this neutral, it is neutral but contain both positive and negative charge. वो भी मैंने बताया कि वो होगा न्यूट्रल, मगर दोनों चार्ज वहां पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और वो हो जाएगा हमारा ZWEETER ion, right? So in ZWEETER ionic form, amino acid shows amphoteric behavior. वो एसिडिक भी नहीं होगा, बेसिक भी नहीं होगा, क्योंकि एक एसिड था उसने इलेक्ट्रॉन H प्लस को लूज कर दिया, बेसिक था उसने H प्लस को गेन कर लिया, और हो जाएगा न्यूट्रल, as they both have acidic and base. Ready? Except glycine, all other naturally occurring alpha amino acids are optically active. वो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्लाइसिन को छोड़ के सभी एमिनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव which can protect plant polarizing light. Since alpha carbon atom is asymmetric, these exist both capital D and capital L form. Most naturally occurring amino acids have L
कॉन्फ़िगरेशन वो भी मैंने सबसे पहले आपको 2 लेक्चर पहले ही बता दिया था। एंड L amino acids are represented by writing the NH2 group on left hand side. It means आप L amino acid को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको L को लिखना होगा left hand side. So this is COOH, here H and here R. Ready? So these are L amino acid. This is the alpha carbon which is optically active because it is a chiral carbon. Ready? So बच्चों आज हमने पूरा एमिनो एसिड कंप्लीट कर लिया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर ये एमिनो एसिड है तो एक दूसरे के साथ डाइपेप्टाइड बॉन्ड्स या तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना के कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, कैसे कैसे पेप्टाइड कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, एन टर्मिनल रेसिड्यू किसे बोलते हैं, सी टर्मिनल रेसिड्यू किसे बोलते हैं, और प्रोटीन के जो स्पेशली आपको टाइप्स देखने होंगे, एक होगा फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा होगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। उतने जितने जो कॉन्सेप्ट है प्रोटीन के लिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब ये प्रोटीन का पोर्शन भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलना होगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।